So, good evening, friends. Now, in this lecture, we are going to cover rolling on a rough inclined plane and how the D'Alembert's principle is applicable for any kind of rolling motion, which may be of cylinder, which may be of a sphere or ring or disc, whatever is rolling on an inclined plane. Then, how to apply the D'Alembert's and how the problems have been solved, that we are going to see here, right? तो यहाँ मैंने एक इंक्लाइंट प्लेन एज्यूम किया है विच इज़ एट एन एंगल थीटा एंड ए सिलेंडर यू कैन एज्यूम बॉडी सिलेंडर और एनी शेप रिंग और स्फीयर और डिस्क वट एवर इट इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड. So we have to calculate first what will be the acceleration of center of mass of the body, right? So if this body is moving downward, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि there will not be any acceleration perpendicular to the दिस इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि सिलेंडर रोल ही कर सकता है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा सकता. तो एक्सेलरेशन एट दिस साइड विल बी ज़ीरो, perpendicular to the plane will be 0, and total acceleration whatever will be, it will exist only towards down the plane. इधर acceleration exist करेगा, right? So the weight of the body is acting downward. So let me draw a component here. It will be mg cos theta, this angle is theta, and in this direction force will be mg sin theta, right? Since surface is rough, it is given, it is a rough inclined plane, so there will be a force of friction which will be acting opposite to the direction of motion. So let me draw it here. F से represent कर रहा हूँ. It is the force of friction. Okay, that means complete body is moving with an angular acceleration alpha. Angular acceleration of the body is alpha. So according to the D'Alembert's principle, what we know कि अगर body angular acceleration alpha से move कर रही है, then we have to introduce an inertial torque in case of the rotating body opposite to the motion, or inertial force in case of the linear motion of the body moving on the track with the linear velocity. So here let me introduce one inertial force opposite to the motion, which I am writing here ma. ठीक है. Now I can write here, see, mg sin theta. देखिए mg sin theta is along the plane downward minus frictional force is equal to m into ACM. What is ACM? ACM is the acceleration of the center of mass. तो ये मैं लिख देता हूँ, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? दिस इज ACM, इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Another equation I am writing by taking the moment about center O of the forces. तो देखिए क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स FF multiplied by radius of the cylinder which is R, radius of the cylinder is R, is equal to what? I alpha. ये बता चुका हूँ आपको, D'Alemberts में क्या बताया था, m naught minus I alpha is equal to 0. This is the second expression. Here friction force can be written as I into alpha is equal to A by R. Since A is equal to R alpha, तो alpha is equal to A by R लिख देते हैं. It will be A by R square total, right? Now putting the value of FF in equation 1, what I'll get? देखिए mg sin theta minus FF is IACM divided by R square is equal to MACM. From here I can get acceleration of center of mass is equal to mg sin theta upon m plus I by R square. तो ये एक जनरल फॉर्मूले की तरह से बना दिया है, इसको याद भी रखेंगे. It gives the acceleration of center of mass of any body. Here variable is what? Acceleration of center of mass is the function of moment of inertia. तो inertia आप बदलते चले जाइए, you can get the value of different center of mass for different body. Let for
ring, for disc, for cylinder और for sphere. Different bodies I am using here. तो आपको ये कैलकुलेट करना है. देन हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज़ हियर. तो देखिए रिंग के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाती है, आई इज़ एम आर स्क्वायर. डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू. फॉर सिलेंडर एम आर स्क्वायर बाई टू. फॉर स्फीयर इट इज़ 2/5 एम आर स्क्वायर. यूज द वैल्यूज ऑफ आई इन इक्वेशन. लेट्स से इट वॉज इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 3 में यूज़ कीजिए एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए सी एम. यहाँ से आप ए सी एम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट सपोज फॉर रिंग आई एम कैलकुलेटिंग फर्स्ट. अगर मैं रिंग के लिए निकालूंगा तो व्हाट आई विल गेट, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई पुटिंग एम आर स्क्वायर. आर स्क्वायर विल बी कैंसिल, एम एंड एम विल बी कैंसिल. वी विल गेट हियर जी साइन थीटा बाई टू. right. Similarly you calculate for disk, you will get 2/3 g sin theta. कैसे मिला देखिए एक बार लिख देता हूँ. यहाँ पर मैंने क्या, ए सी एम इज इक्वल टू इट इज़ एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम प्लस आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कैंसिल, 1 + 1/2 is 3/2. इट बिकेम 2/3. Similarly it is what, 2/3 g sin theta. And if I calculate this for a sphere, I'll get 5/7 g sin theta. तो यहाँ से डायरेक्टली आप सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर. नाउ लेट सपोज इट इज आस्क्ड दैट कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ एनी बॉडी आफ्टर रोलिंग सम डिस्टेंस x मीटर और s मीटर. मतलब ये सिलेंडर या ये बॉडी जो भी है, ये कुछ दूरी ट्रेवल कर जाए तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी इज इक्वल टू s मीटर डाउन द प्लेन. डाउन द प्लेन नीचे की ओर आती है. तो आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सेंटर, उस समय बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी. मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सेंटर. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी. सिंपली वी विल यूज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ देखिए u की वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है सिलेंडर की. तो v की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ से, इट विल बी √2a इंटू एस. और s को क्या लिखा जा सकता है, इफ़ s इज़ डाउन द प्लेन. सपोज सिलेंडर यहाँ है, मैं इसको अगर टॉप से मान लेता हूँ, यहाँ है कहीं पर सिलेंडर इज सिचुएटेड एट दिस वन. तो सिंपली यू कैन गेट इफ दिस टोटल वैल्यू इज s. मैं इसको s लिख रहा हूँ. सिलेंडर अगर बिल्कुल हाइट पर है या कहीं पर भी हो, आप उसके मुताबिक लिख सकते हैं. व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू h/s. तो s इज इक्वल टू h/sin थीटा. दिस इज h/sin थीटा. और इस इक्वेशन में आप ACM की वैल्यू रख दीजिए बिकॉज ACM यू हैव कैलकुलेटेड. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. यहाँ A की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A यू कैन गेट द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द सिलेंडर. मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी. नाउ सपोज वन मोर थिंग आई एम इंटरेस्टेड टू नो. लेट इट इज आस्क्ड दैट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, this the value of inclination theta is given and it is asked calculate the coefficient of friction mu. Or sometimes it happens theta is not given and mu is given and it is asked that calculate the value of theta, that means the angle of inclination. So whatever may be asked, you can see this friction force FF can be written as FF. फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज म्यू टाइम्स एन. तो देखिए now friction force FF is equal to mu times n and n is equal to mg cos theta. From the figure, it is the component along vertical to the perpendicular to the plane of inclination. FF is equal to mu into mg cos theta. Right. Now the value of FF have been calculated here in this equation.
एफ एफ क्या निकाला है हमने, आई ए सी एम बाई आर स्क्वायर। तो दियर फोर आई टाइम्स ए सी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी cos theta, and value of ACM for different bodies I have calculated here. Whatever body is given, for that you can calculate. Let's suppose, let for sphere I have to calculate. Let for sphere ACM कितना हो जाता है, अभी मैंने निकाला था 5/7 g sin theta, 5/7 g sin theta. So by putting this value, the value of IACM by r square, I can get I is equal to, for cylinder, for sphere is 2/5 mr square into ACM is 5/7 g sin theta divided by r square is equal to mu mg cos theta. तो यहाँ से आप देख सकते हैं this 5 will be cancel out, r square will be cancel out, m and m will be cancel out. So I will get sin theta by cos theta, and g will also be cancel out, is equal to, this will be 2/7 ना, mu 7 mu by 2. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा आई विल गेट 7 mu by 2, दैट इज tan theta is equal to 3.5 mu, or you can get the value of theta is equal to tan inverse 3.5 mu. तो यहाँ से आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी निकाल सकते हैं या म्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट सिंपली इज ACM पता होना चाहिए, आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ म्यू. तो जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू. म्यू इज इक्वल टू आई टाइम्स ACM बाई नॉर्मल रिएक्शन n इंटू आर स्क्वायर. तो बाई दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो. दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. तो जो हमने पढ़ा इसकी हेल्प से चलिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन लेट मी टेक, मैं सॉल्व करता हूँ. लेट दिस इज द क्वेश्चन. A ring and a disc are initially at rest side by side at the top of an inclined plane which makes an angle of 60 degree with the horizontal. They start to roll without slipping at the same instant of time along the shortest path. If the time difference between their reaching the ground is given something second, then height of the top of the inclined plane will be. So let us solve this question. मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ. लेट मी टेक वेयर दैट क्वेश्चन हैव बीन गॉन. देखिए क्वेश्चन के मुताबिक मैं फिगर को बना रहा हूँ. व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग. आई थिंक क्वेश्चन अभी यहाँ, हाँ ये दिस इज़ द क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ आ गया. तो लेट मी टेक दिस प्रॉब्लम. ये है क्वेश्चन. सॉरी फॉर डिले लिटिल. यस, तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. आपके सामने लिखा, आप एक बार रीड कर लीजिए पॉज करके. तो आई एम जस्ट ड्राइंग एज द क्वेश्चन इज गिवन. लेट दिस इज एन inclined given. Here angle of inclination is given 60 degree and height नहीं दी गई है, यही आपको कैलकुलेट करना है. एक बॉडी जिसका शेप कैसा दिया गया है, रिंग एंड डिस्क, दे आर द टू डिफरेंट बॉडीज. दो अलग अलग बॉडी है. तो अभी हमने सॉल्व किया बिल्कुल सेम सिचुएशन. वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड. इट इज व्हाट mg cos थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा. ये बराबर होगा आपके नॉर्मल रिएक्शन के
this component will be equal to mg sin theta. Body is rolling by an angular acceleration alpha, and center of mass is having linear acceleration acm. Opposite to the motion, we will introduce a force which is ma. Now what is asking here, calculate the height. यहाँ देखिए लिखा height of the top of the inclined plane. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर गेटिंग हाइट, फर्स्ट कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर रिंग. दो बॉडी है, तो अभी आपको रिंग के लिए मैंने फार्मूला बताया था एक्सेलरेशन का. क्या होता है? एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर. इस इक्वेशन में आई फॉर रिंग इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एंड आई फॉर डिस्क. दो बॉडी जो कंपेयर करना वो हमें क्या है? रिंग और डिस्क है. इज एम आर स्क्वायर बाई टू. तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर रिंग इज इक्वल टू जी बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू 9.81 बाई टू इंटू साइन 60. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. व्हाट आई विल गेट? 9.81 इंटू साइन 60 बाई टू. दिस आई एम गेटिंग 4.247 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलरली acceleration of center of mass for disk, by putting I is equal to mr square by 2, we will get 2 by 3 g sin theta is equal to 2 by 3 into 9.81 into sin 60, और वैल्यू हो जाएगी 2 by 3 into 9.81 into sin 60. this I am getting 5.663 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? दे स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम along the shortest path. If the time difference between their reaching on the ground is given, then height is how much? तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले टाइम पता कैसे करेंगे? फ्रॉम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी विल बी ज़ीरो बिकॉज इनिशियल पोजिशन ज़ीरो है. इनिशियल जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है. तो हियर टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए. तो क्या लिख सकता हूँ? देखिए मुझे डिफरेंस निकालना है किसका? टी ऑफ टाइम ऑफ रिंग एंड टाइम ऑफ डिस्क. टाइम ऑफ डिस्क यहाँ क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है द टाइम डिफरेंस बिटवीन दियर रीचिंग द ग्राउंड इज गिवन. दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट हियर अंडर रूट 2 इंटू एस इज इक्वल टू एच बाई साइन 60. यहाँ देखिए साइन 60 इज इक्वल टू एच बाई एस. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एस इज इक्वल टू एच बाई साइन 60 इंटू 1 बाई अंडर रूट ऑफ ए ऑफ फर्स्ट. अगर डिस्क लिखा है तो यहाँ डिस्क लिख देते हैं, रिंग लिखा हो तो रिंग लिख दीजिए, ए ऑफ रिंग. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ये निकाल चुके हैं यहाँ से. पुट दीज वैल्यूज हियर एंड द वैल्यू ऑफ टाइम इज गिवन हाउ मच? 2 minus root 3 by root 10. 2 minus root 3 by root 10 is equal to root of 2h upon sin 60 is root 3 by 2 into 1 by under root 5.663 minus 1 by under root, this is 4.247. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं and get the value of, let me solve it, under root 5.663 inverse minus under root 4.247 inverse, this one, into under root of 2 divided by sin 60, this one, and the left side term is 2 minus root 3 by 10. 2 minus under root 3 by 10 by under root 10, sorry, under root 10
its whole square divided by 0.09 square. So now I'm getting, by solving, the value of h is 0.7486 meter, or you can say 0.75 मीटर इज द फाइनल आंसर. देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. इस एक एनालिसिस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं. हाउ टू कैलकुलेट द म्यू, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, एंड सो मैनी थिंग्स. सो बाय दिस एग्जांपल आई एम एंडिंग द concepts of dynamics here, the first portion which was based on d'Alembert. In the second set I'll teach you, I'll discuss you first what is the concept of work energy principle. Thank you.